Good morning, student. Now, here the three parts we completed, and the last topic of this lesson is inequality of the triangle. So, equality of the triangle we already learned in the previous videos. So, today we are going to start the inequality of the triangle. So, what is meant by the inequality of the triangle? The first point is if two sides of a triangle are not equal. So this word is most important. ये अनइक्वल अन को वर्ड को मैंने डिलीट कर दिया तो यहां पे बन जाएगा इक्वल. इफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन एंगल अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल. दिस इज आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम. गॉट इट. तो यहां पे अनइक्वल की जगह इक्वल की जगह क्या है? अनइक्वल है. मींस इफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल है मींस नेचुरली एक छोटा और एक बड़ा होगा. सो यहां पे गिवन इंफॉर्मेशन रहेगा आपका. व्हाट इज गिवन इंफॉर्मेशन इन ट्रायंगल एबीसी? ओके, जो इफ को फॉलो करता है वो गिवन हो गया. सो इन ट्रायंगल एबीसी AC is greater than AB. AC is greater than AB. Means if two sides of a triangle are unequal means एक बड़ी साइड है और एक छोटी, तो ये ग्रेटर साइड होगी और ये होगी आपकी स्मॉलर साइड. ओके, then means आ गया आपका to prove. अब ये to prove क्या बोला है? एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड. लॉन्गर साइड है AC और AC का अपोजिट एंगल B. एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड दैट इज B इज ग्रेटर. ये कह रहेगा ग्रेटर रहेगा एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड. स्मॉलर साइड AB हो गई तो AB का अपोजिट एंगल C. थ्योरम का स्टेटमेंट समझ गए? What is the statement of the theorem? If two sides of a triangle are unequal, then angle opposite to greater side is greater and angle opposite to smaller side is smaller. Now we want to prove here. For that we make construction. एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे. Now we will take the points on AC as a point D. हमने क्या कंसीडर किया? एक AC के ऊपर एक पॉइंट लिया D. टेक पॉइंट D on AC. AC के ऊपर इसलिए लिया क्योंकि AC is greater than AB है, इसीलिए लिया. Such that कैसा है ये पॉइंट? AB is equals to AD. इस तरह से बनाया ताकि AB और AD कैसा बने? Equal. So now we will join this B and D. Okay, understood? इतना समझ गए? Now in triangle ABD, what is given here? AB is equals to AD. It is construction, and as AB is equals to AD, it means that angle ABD is equals to angle ADB. Equation 1, isosceles triangle theorem. चलो इतना समझ गए आप लोगों को? Means this 1 is equals to 2. Means angle 1 is equals to angle 2 है, but you know that angle ADB is an exterior angle of triangle DBC. ये जो दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है? ये ट्रायंगल में DBC में ADB कैसा दिख रहा है? एक्सटीरियर. एंड एज इट इज एन एक्सटीरियर एंगल इट्स मेजरमेंट इज इक्वल्स टू x plus y. सो कैन वी राइट हियर 2 is equals to x plus y. अब इसका मेजरमेंट जो रहेगा ये दोनों का एडिशन. दैट इज 2 is equals to x plus y. इट मींस 2 is equals to क्या है? x plus y. इसका मतलब ये हो गया कि 2 is greater than x and 2 is greater than y. क्योंकि 2 का वैल्यू x plus y जितना यदि है तो naturally the value of 2 is greater than x and the value of 2 is greater than y. Therefore angle ADB is greater than angle ACB. रहेगा ग्रेटर? रहेगा नहीं. मगर ADB जो दिख रहा है ADB किससे
ABD से इक्वल है, तो ADB की जगह क्या रखेंगे हम लोग, ABD, therefore angle ABD is greater than angle ACB, ये लिखा हमने from equation 1. Now here ABD में हम लोग BDC ऐड करते हैं, ABD plus angle DBC is also greater than angle ACB. क्यों ग्रेटर? अरे ग्रेटर में ग्रेटर मिलाएंगे, एक ग्रेटर में कुछ और मिलाएंगे तो वो और ग्रेटर होगा ना, बराबर है। 10 केजी और 5 केजी, 10 केजी ग्रेटर है, अब 10 केजी में मैंने और 1 केजी डाल दिया, मींस 11 केजी बन गया, तो 11 केजी इज नेचुरली ग्रेटर देन 5 केजी. इट मींस दैट ABD इज ग्रेटर देन ACD, therefore ABD plus DBC is always greater than ACB, and sum of these two angle is nothing but angle, which one? B is greater than angle C. Therefore if two sides of a triangle are unequal, then angle opposite to the greater side is greater and angle opposite to smaller side is smaller. Now the next one is if two angles of a triangle are unequal. पहले इसमें देखा हमने two sides, अब यहां पे ले रहे हैं हम लोग two angles. If two, उसका ही कॉन्वर्स है, ओके, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, तो यहां पे क्या बोलेंगे, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर. मींस यहां पे बोला है इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल देन साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर. मींस जो ग्रेटर एंगल है उसका अपोजिट साइड रहेगा लॉन्गर, बड़ा रहेगा. तो यहां पे ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी दिया हुआ है, एग्जैक्टली उसका उल्टा. तो प्रूफ क्या करेंगे, बी का अपोजिट साइड कौन सा हो गया, AC इज ग्रेटर देन AB, ये शो करना है, AC इज ग्रेटर देन AB. सो फॉर द प्रूफ वी विल मेक सपोजिशन. सपोजिशन मींस एक अंडरस्टैंडिंग पार्ट्स लेंगे हम लोग. सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटी. अब देखिए एंगल AB और AC के बारे में 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है. AB और AC के बारे में कोई भी ट्रायंगल कंसीडर करो, कोई भी ट्रायंगल कंसीडर करेंगे तो इसमें 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है. या तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, या फिर ये ग्रेटर हो सकता है, या फिर ये ग्रेटर हो सकता है. मींस देयर आर 3 पॉसिबिलिटी. There are 3 possible result situation, possible situation between, किसके बीच में, between AB and AC. AB और AC के बीच में 3 सिचुएशन पॉसिबल है. सबसे पहला सिचुएशन, the first situation, या तो AB is equals to AC रहेगा, ये रहेगा पहला सिचुएशन. यदि AB is equals to AC है, so naturally if AB is equals to AC ये पहला सिचुएशन है, तो AB और AC इक्वल हुआ तो एंगल B is equals to एंगल C बनेगा, because it is the isosceles triangle. यदि मैंने AB is equals to AC लिया, इसका मतलब ये हुआ कि ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, और आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब B is equals to एंगल C है, and if B is equals to एंगल C है, means this is the statement, this given information is false. तो यहां से हमको पता चलता है, मगर क्या दिया है, but what is given that angle B is greater than angle C, it means that this condition is wrong. तो ये वाला कंडीशन क्या दिख रहा है आपको, wrong दिख रहा है. Now the second condition, second case. तो सेकंड केस में मैं कंसीडर कर रहा हूं यहां पे AB is greater than AC. अब AB is greater than AC बोला तो AB का अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, एंगल C is greater than एंगल B, बराबर. ये कैसे लिखा हमने, अपने पास अभी रिलेशन हमने ढूंढा है, साइड ऑफ एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज ग्रेटर एंड एंगल अपोजिट टू द स्मॉलर साइड इज स्मॉलर. सो ग्रेटर साइड है AB, तो AB का अपोजिट एंगल हो गया एंगल C, और AC is the smaller side, so naturally इसका अपोजिट एंगल हो गया B. Therefore angle C is greater than angle B, side of angle opposite to the greater side. But it is given that, what is given, angle B is greater than angle C.
therefore this relation is also false. तो इक्वल भी नहीं है, AB is greater than AC भी नहीं है, तो बचा हुआ क्या रहेगा? AC is greater than AB. AC is greater than AB. इक्वल नहीं है, AB is not greater than AC, then what is the rest? मींस तीसरे कंडीशन में बचा कौन है यहाँ पे? AC is greater than AB. Therefore we can say that if two angles of a triangle are unequal, then side opposite to greater angle is longer. Now the next question is, next example is, example means theorem is, sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. Sum of any two sides of a triangle, कोई भी दो साइड का एडिशन means यहां पे या तो AB प्लस AC is greater than AB, ये पॉसिबल, सॉरी AB plus BC is greater than BC, ये हो सकता है, या फिर either AB plus BC is greater than AC, ये हो सकता है, या फिर AC plus BC is greater than AB, ये हो सकता है. Means sum of these two side is greater than this side. Either sum of these two side is greater than this side or sum of these two side is greater than this side. Means AB. Okay? तीन में से कोई भी एक प्रूफ कर सकते हैं. उसके लिए हमने क्या किया? एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया. कंस्ट्रक्शन ऐसे किया कि AB को मैंने एक्सटेंड कर दिया. कहां तक एक्सटेंड किया मैंने? D तक एक्सटेंड किया और इस तरह से एक्सटेंड किया ताकि AC और AD कैसा बने? सेम, और इसको ज्वाइन कर दिया. मींस टेक अ पॉइंट D on AC, sorry BA on BA such that क्या है? AC is equals to AD. Okay? Now the proof. इसको प्रूफ करेंगे हम लोग. अब हमारे पास में जो दिया है ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल दिया है? इन ट्राइंगल विच वन? ADC. ADC में AD is equals to क्या दिख रहा है आपको? AC. ये तो कंस्ट्रक्शन किया था हमने. अब AD is equals to AC है, इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल बन गए, बिकॉज इट इज द आइसोस्केलियस ट्राइंगल. देयरफॉर एंगल ADC is equals to angle ACB. Sorry, ACD. Equation number 1, isosceles triangle theorem. Got it? अब AD is equals to AC है, it means that ADC means this angle and ACD this angle, both the angles are equal angle. Got it? इतना समझ गए हम लोग. अब हम क्या करेंगे? इस एंगल में ये मिला देता हूं मैं. ओके? अब मैंने लेफ्ट में नहीं मिलाया, मैं राइट में ले रहा हूं. मींस एंगल ADC को एज इट इज रखा मैंने. गॉट इट? अब एंगल ACD में मैंने क्या ऐड किया? ACB. अब मुझे बताइए, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये 40 है तो ये भी 40 है. यदि मैं ये 40 में 50 मिला रहा हूं तो ये 90 बना कि नहीं? अब ये 90 बना और ये तो 40 है, तो नेचुरली दिस 90 is greater than this 40. Therefore we can say that this angle means which one? The sum of these two angle is always greater than angle ADC. Therefore angle ADC is less than ACD. ACD means ये वाला X और इधर का है Y, तो ये दोनों मिलके क्या बन गया? DCB. इतना समझ गए? अब DCB ग्रेटर है, इसको हटा दीजिए, अभी इससे कंफ्यूजन होगा हमको, तो इसको हटा दिया हमने. अब C इज ग्रेटर एंड D इज द स्मॉलर, तो C का अपोजिट साइड कौन सा हो गया? BD. C का अपोजिट साइड कौन सा हो गया? BD. देयरफॉर BD इज ग्रेटर देन D का अपोजिट साइड कौन सा हो गया? BC. गॉट इट? मींस side opposite to greater angle is greater and side opposite to smaller angle is smaller. तो अपोजिट ये एंगल C ग्रेटर है तो ये BD ग्रेटर हो गया और D स्मॉलर है तो BC स्मॉलर हो गया. बट BD is converted into two part, which one? AB plus BD is greater than BC. But here BD is nothing but the what is given? BD.
कहाँ है बीडी? बीडी कहाँ गया? हाँ बीडी नहीं है, सॉरी एडी है वो, बीडी नहीं है, क्या है? एडी है। मींस एबी प्लस एडी, ओके, बट इंस्टेड ऑफ एडी कैन वी पुट हियर एसी, एडी की जगह क्या रख सकते हैं? एसी, देयरफॉर वी राइट एज एबी प्लस एसी इज ग्रेटर देन बीसी। तो ये दिखाना है तो हमने इसको एक्सटेंड किया, आप दूसरा भी दिखा सकते हो या फिर आप तीसरा भी दिखा सकते हो, मगर तीनों में कोई भी एक भी दिखाया तो भी आपका आंसर रहेगा, तो भी करेक्ट रहेगा। Now the fourth statement is of all the line segment that can be drawn to a given line, means आपके पास एक लाइन होनी चाहिए, एक लाइन दिया मैंने, to the given line from a point not lying on that line, means एक पॉइंट है जो कि लाइन पर नहीं है P, तो बोला गया है कि from of all the line segment that can be drawn to a given line, that can be drawn to a given line from a point not lie on the line, means इसके ऊपर नहीं है तो यहां से ये जो हम लोग डालते हैं the perpendicular line segment is the shortest, मींस ये जो परपेंडिकुलर डाला है ये सबसे छोटा रहेगा than that of the any line that can be drawn from the point A to the line L, means we want to show that PQ is great lesser than PR, means क्या प्रूफ करना है हमको? टू प्रूव में हमको प्रूफ करना है PQ is less than PR, because PR is again the line segment drawn from the point P on the line L, and PQ is also the line segment drawn from the point P to the line L, but the difference is PR is not the perpendicular but PQ is perpendicular to the line L. It means that we want to show that the perpendicular is the shortest distance, ये हमको प्रूफ करना है, और इस प्रूफ के लिए एकदम इजी वे है, हमने ट्रायंगल कंसीडर किया PQR। Now in this triangle, angle PQR is equals to 90 degree. So naturally this triangle is the right angle triangle, and if it is the 90 degree, it is the greatest angle. Therefore angle Q is the greatest angle than that of any other angle. Any other angle means angle R. ये जो एंगल रहेगा Q, ये एंगल रहेगा ये दोनों से ग्रेटर, तो नेचुरली एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल R। अब Q का अपोजिट साइड जो दिया है वो दिया है PR, और R का अपोजिट साइड दिया है PQ, सो नेचुरली PR इज ग्रेटर देन PQ, इट मींस साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, साइड अपोजिट टू ग्रेटर angle. You know that side opposite to greater angle is greater and the side opposite to smaller angle is smaller.